mythologies are called as Puranas. But whereas Ramayana and Mahabharata are called Itihasa. श्री कृष्ण का पूरा महाभारत में यही है, जहाँ गए वहाँ युद्ध पैदा किया और सबको मुक्ति दी. For Guru, everybody is same. Everybody has a place, everybody has a role to play. Gurudev, Ravan and Kans, they are said to have got liberated. So how can someone who follows the path of adharma get liberation? When you come out of a movie, both the hero and the villain are appreciated for playing their roles. For a director, what it says, if a villain has played a perfect villain, will he not get applaud? Will he not get an award? Is it given only to heroes? Best villain also. So that is it. It answers the question. So all this is just a drama. The dream nature of the world is what the reality is, and that's what Vedanta says. And everybody is playing their own parts. In fact, if you go little beyond, who were Kansa, who was Ravana? They were the doorkeepers of Mahavishnu. They got some शाप, जय विजय को शाप मिला, तो भी वो रावण कुंभकर्ण बन गए. और रावण कुंभकर्ण तो वो एक रोल के लिए बने ना, उसके बाद तो उनको मुक्ति तो मिलना ही है. तो ये सब गोल गोल है. Gurudev, I thought Asuras were bad and Devas were good, but Vibhishana and Ghatotkacha were good. So are they not Asuras anymore, or can there be good Asuras also? Asuras are not always bad. Asura is a clan. But normally they are thought to be people with not so much ethical practice. That's why you can't paint everyone with the same brush. Yeah, Vibhishan of course was the Asura, Prahlad was an Asura also. So they are all good people, there is goodness in everybody. And whereas you see Indra as a Devta, and any Rishi Muni is doing tapasya, Indra gets jealous and comes and puts an obstacle. See, our ancient people had such a sense of humor and a great way of depicting opposite values are complementary and opposite values coexist. Gurudev, what was so special about Arjuna that he got so much of Krishna's attention? So that you can ask this question. If he had not given the attention, this question also would not have come, no? So to whomsoever Krishna pays attention, they will ask the same question. Why Radha was special among all the gopis? Why Yashodama was so special? Why Uddhav was so special? Why did Sri Krishna chose only Uddhav to give his last message? So these are questions which should be turned into wonder. गुरुदेव श्री राम के आग्रह पे लंकापति रावण माँ सीता को लेकर रामेश्वरम पहुँचे और ऐसे यज्ञ कार्य सिद्धि यज्ञ का आयोजन करा जिसका उद्देश्य ही रावण की पराजय था. यह जानते हुए भी रावण ने इस आग्रह को क्यों स्वीकार किया गुरुदेव? इसीलिए तो कहते हैं रावणेश्वर, ईश्वर की पद भी उसको मिला था. रावण भी जानता था ये मेरा ये रोल है, ये प्ले करके मुझे ख़त्म करनी है इस जन्म को. इसीलिए रावण को मुक्ति मिली कहते हैं आखिरी में. तो रावण ने वर मांगो क्या मांगते हो ये भी पूछा श्री राम से. राम ने कहा कि मुझे विजय प्राप्त करने की आशीर्वाद दो. विजयी भवा बोले रावण ने. और सीता को आशीर्वाद दिया उन्होंने पूजा के बाद. किसी और संस्कृति में ऐसी गहरा ज्ञान और ऐसी विद्या कहीं मिलती नहीं है. Gurudev, what is the significance of Agni Pariksha? See, our rishis, kavis have very decorative speech. Their speeches are always with similes, with examples, and it's all a poem. You can't literally take those things, you know. If you say, oh, I am going through an Agni Pariksha, that doesn't mean that you are getting into the fire. You know, it's a fire in the mind. So Sita was always pure. Sita was never blemished.
She continued to be pure. गुरुदेव, जीवन भर भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य धर्म के साथ रहे, फिर आखिरी में कैसे क्या वो अधर्म के साथ? वो खुद ही भीष्म बोलते ना, मैं इनका नमक खा लिया हूँ। मैं जानता हूँ धर्म क्या है अधर्म क्या है, मगर उसमें मुझे प्रवृत्ति नहीं होती है। बोलता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं क्या गलत है ये जानता हूँ, मेरा मन हटता नहीं है। धर्म क्या है मैं ये भी जानता हूँ, मगर उसमें मेरा प्रवृत्ति नहीं जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब प्रभु की लीला है, अपना अपना रोल करते जाओ। यदि दुर्योधन में इतना भी होश नहीं होता, ये थोड़ी ना ऐसा बोलेगा। दुर्योधन का ही वाणी है, मैं जानता हूँ मगर उसमें मेरा प्रवृत्ति नहीं होती। किसी किसी का ऐसा हो जाता है ना नेगेटिव, और जानते हैं अच्छे से, बैठ के बात करेंगे तो नकारात्मक ही बोलेंगे, हर चीज़ में कुछ ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे नेगेटिविटी। Gurudev, Ravan was a great scholar and he was also a big Shiva Bhakt. But in spite of all his devotion and knowledge, yet how could he be so arrogant? And can someone who is a scholar and a devotee, can they still walk the wrong path? Your scholarliness itself can become weight on you. One thinks I am a big scholar, that is enough to bring arrogance. Once arrogance comes, anger comes with it. Anger and arrogance both together will bring also ego. So all these host of negative qualities starts coming in. So it is possible a yogi can fall any time, but a bhakt will not fall. A devotee cannot fall, because a devotee is already in state of surrender. Gurudev, Kunti conceived her children through the power of mantras. Gandhari had her 100 children from a single pregnancy. And these are all inconceivable in today's time. So could you kindly tell us how it was possible? Gandhari conceived only one child. It's like a test tube babies. You know, the concept of test tube babies was unheard of about 50 years or 100 years ago. But today, it's a reality. So perhaps in those days they had conceived these ideas. You can never know. Gurudev, Krishna stole butter and children are asking, you are telling you should not steal anything. How can we explain that to children? Sri Krishna stole butter and get caught. So like that, when they steal also, you tell them there was no police in those days. Today if you steal, police will catch you. Those days when Krishna stole butter, only the mother used to catch them. So that is why he says, कृष्ण का उपदेश को फॉलो करो, कृष्ण को मत फॉलो करो। कि कृष्ण की हर चाल टेढ़ी होती थी। रामचंद्र जी की चाल पे चलो। श्री रामचंद्र जी जो भी पिताजी जो बोले वो वाक्य था उनके लिए। श्री कृष्ण अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। कृष्ण की चाल पर नहीं चलना, बस कृष्ण की बात सुनो, उपदेश सुनो और अनुकरण करो, राम की यही बोलते हैं। इसलिए देखो यहाँ दक्षिण भारत में जहाँ ज़्यादा ट्रेडिशनल बेस है, श्री राम जी के मंदिर गांव-गांव में मिलता है, श्री कृष्ण के नहीं मिलते। गीता सब जगह होती है गांव-गांव में, मगर मंदिर हनुमान जी का होगा, रामचंद्र जी का होगा। गुजरात एक छोड़ के भारत में अधिकतर सब जगह गांव-गांव में श्री राम मंदिर ही होता है। In Ramayana, the Vanaras had a big role to play, and in Mahabharata, the Nagas had a huge significant role to play. They helped in reviving Arjuna on the battlefield through Ullapi. They helped Bhim regain the strength, and they also had a role to play in Parikshit's death. Who or what are the Vanaras and the Nagas? Are they extinct? Nagas, you cannot conclude them as just serpents. Now you have Lions Club members all over the world. They all call them lions, lioness, and Rotarians. Naam to Rotarian, they don't rotate all the time.
So like that, Nagas were clan. Even today, Nagaland is there. Those they are all called themselves Nagas, and many sadhus call themselves Naga Babas, Naga sadhus. Agha means, you know what, sin. Agamarshana बोलते हैं. अगमर्षण माने अपना पाप को धो डालना. अघा माने पाप. नाघा माने जिन्होंने कोई पाप नहीं किया. शुद्ध, प्यूरिटी को डिपिक्ट करता है. शुद्ध समाज, नागा समाज होते हैं. ऐसे वानरा का भी अर्थ है. वाह, नरा माने ये भी मनुष्य क्या. नरा माने मनुष्य. वाह, ये मनुष्य क्या. माने अमानुष कृत्य करने वालों को आश्चर्यचकित होकर के कहना वाह नर. ऐसे गुरु के लिए भी वाह गुरु. वाह, गुरु का जीवन में आने से इतना चमत्कार हुआ, इतना आनंद हुआ, तब बोले वाह गुरु वाह. तो वो उद्गार निकला. ऐसे वानर के लिए भी ये निकला. वाह, मनुष्य जैसे व्यवहार करते हैं. अब हनुमान जी को तो कहते हैं कि हनुमान जी इतने बड़े विद्वान थे, चारों वेद जानते थे. तब आश्चर्य होता था कि वाह. गुरुदेव, उन दिनों पे ये ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र, ये सब अस्त्र कहाँ से योद्धाओं को मिलते? देखो भाई, ये ऑस्ट्रेलिया है ना देश, इसका अर्थ कैसे आया, उसका मूल पता है कैसे आया. अस्त्रालया, महाभारत में अस्त्रालया ऑस्ट्रेलिया बना. वहाँ पर रखा हुआ था, कहते हैं सारे जो पावरफुल वेपन्स. इसीलिए आज भी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच पूरा मरुस्थल है. तो साइंटिस्ट कहते हैं लगता है कई हजारों साल पहले यहाँ कोई न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ होगा. ना कोई वहाँ जीव जंतु है, ना कोई वृक्ष है. जो भी ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है वो किनारे किनारे है, समुंदर के किनारे ही है. तो उन दिनों में ज़रूर रहा होगा. अच्छा, ना भी रहा हो, कल्पना तो रही उसकी. माने वो कल्पना से तो सब निकलता है. पहले किसी ने कल्पना करी, पक्षी को देख के ऐसे प्लेन बनाना है तो उन्होंने बनाया. ऐसे किसी के दिमाग में ऐसा कल्पना है, ब्रह्मास्त्र जो सब ध्वंस कर सकता है. माने जहाँ एक विचार रूप में बीज है, वहाँ समझ लेना चाहिए पूरा वृक्ष भी है. आम का एक गुठली हाथ में रखोगे, तुम सिर्फ गुठली नहीं लेके घूम रहे हो, तुम पूरा वृक्ष को लेके घूम रहे हो असली में. देखिए पूरा वृक्ष उसमें है और हजारों आम उसमें हैं. तो ये तो तुमको समझ में आना चाहिए, ये पूरी वृक्ष की संभावना एक फल में है. ऐसे ही मंत्र, शास्त्र, ये सब बीज रूप है प्रकृति के. गुरुदेव, तो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि कौन सूर्य को उदय करता है, कौन उसके साथ भ्रमण करता है, कौन उसे अस्त करने को प्रेरित करता है और वह दृढ़ता से कहाँ स्थित होता है. यह प्रश्न बड़ा वैज्ञानिक लगता है, इस पर प्रकाश डालें. यक्ष प्रश्न की सुंदरता यही है, ये बहुमुखी है. इसमें एक बच्चा भी पढ़ता है तो उसको कुछ मिलता है, युवा पढ़ता है तो उसको कुछ मिलता है, ज्ञानी पढ़ते हैं तो उनको कुछ मिलता है, वृद्ध पढ़ते तो उनको कुछ मिलता है. तो हमने कभी भी किसी भी कहानी को या प्रश्नोत्तरी को एक देशी नहीं बनाया. हमने ऐसा बना के रखा, उसमें बहुमुखी प्रतिभा निकल आए और सबके उपयोगी हो और सर्वकालीन हो. इसलिए इसमें तुम खोजते जाओगे तो बहुत सारी वैज्ञानिक बातें निकलती जाएगी. अब आश्चर्य हो जाएगा कि आपको वाह, इतने हजारों साल पहले उनको ये बात कैसी पता रही होगी. यही इसकी सुंदरता है. रैपिड फायर राउंड. रैपिड फायर करने के लिए थोड़ा पानी पी लेते हैं. If we can pick one quality from the following characters of Ramayana or Mahabharata, which describes them best. The first one is Mata Kekai. त्याग. Raja Dhritarashtra. मोह. Ravana. कमिटमेंट. दुर्योधन. ऑब्स्टिनेट. दुर्योधन का अच्छा क्वालिटी क्या है? Surrendered to his mama Shri. अच्छा भतीजा था. वो अपने लक्ष्य पर टिका रहा आखिरी मिनट.
पांडव को ख़त्म करना उसका लक्ष्य था। वेदर हुआ कि नहीं हुआ, मगर लगा रहा, पूरा जीवन उसमें लगा ही दिया, ये कह सकते हैं। वाली, विक्टिम, मंडोदरी, विक्टिम, कर्णा, विक्टिम, ए गुड पर्सन इन ए रॉन्ग कंपनी, कर्ण, उर्मिला, द ग्लो बिहाइंड द स्क्रीन।